آج کے اس جلسے کے پروگرام جماعت اسلام ہند کی جانب سے الحمدللہ جماعت اسلام ہند شہر کریم نگر میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں یہ جماعت کام کرتی ہے، اور یہاں پر بھی تقریباً یہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ 12 ربیع الاول کا مہینے میں ہر ایک دن ہر جگہ پر ہر سیاسی لیڈروں کے ساتھ، ہمارے غیر قوم بھائیوں کے ساتھ بھی یہ لوگ کا تعلق رہتا ہے۔ ابھی بھی الحمدللہ ہمارے کریم نگر کے چرچ میں پروگرام چل رہا، ابھی وہاں سے آنے والے ہیں خیر الدین صاحب اور صدر محترم، اور ہمارے اس پروگرام کے خاص مہمان خصوصی ہمارے ایکس نارا داس لکشمن راؤ جو MLC صاحب ہے، یہ ہمارے پارٹی کے سینئر ہمارے گرو ہیں میرے۔ الحمدللہ آج اس پروگرام کی آغاز جماعت اسلامی ہند کی طرف سے، اور ہمارے شوکت بھائی TRS پارٹی کے مائنارٹی صدر، ہم لوگ یہ امجد بھائی کو جو ہے سو یہ لوگ جماعت اسلام والے جو ہے سو دعوت دیے تھے، انہوں یہاں پر موجود نہیں ہیں، لندن میں ہیں، اس لیے جاتے جاتے مجھے اور شوکت بھائی کو یہ ذمہ داری دے کے گئے تھے۔ انشاءاللہ ہم اس کو پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ تمام لوگوں کو میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پر اس وقت موجودہ ہے۔ اس پروگرام کی آغاز انشاءاللہ ابھی شروع ہونے والی ہے۔ میں جناب اشراق علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ محترم جناب یوسف صاحب، جناب شوکت صاحب، جناب بابوجانی صاحب، جناب نارا داس لکشمن صاحب ایکس MLC، اور آج کے اس میٹنگ میں شرکت فرما BRS پارٹی سے تعلق رکھنے والے تمام قائدین اور تمام لیڈرز، میں آپ تمام کا سب سے پہلے استقبال کرتا ہوں، اس اجلاس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ جیسے ابھی یوسف صاحب نے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ جماعت اسلامی ہند جو ایک کل ہند جماعت ہے، اور جماعت اسلامی ہند صرف مذہبی جماعت ہی نہیں ہے بلکہ یہ سماجی، مذہبی، اصلاحی اور سیاسی تمام شعبوں کے اندر الحمدللہ اپنی خدمات انجام دیتی ہے۔ اور آج کا یہ خاص اجلاس جو رکھا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے کیا اغراض ہیں، میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جماعت کے ذمہ داران، ناظم ضلع اور جناب خیر الدین صاحب ابھی تشریف لائیں گے، اس لیے کہ ابھی صبح سے ہمارے 2 پروگرامز، ایک کریم نگر کا جو سینٹرل گرودوارہ ہے اس کے اندر چل رہا تھا، اور اس کے بعد پھر ستیہ بابا سائٹ ٹیمپل کے اندر بھی ہمارا یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے، تو اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ ابھی تشریف لائیں گے۔ تو ابھی آپ کو بتایا گیا کہ پورے ضلع کریم نگر کے اندر ایک کیمپین چل رہی ہے، ایک مہم چل رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، پیدائش کا مہینہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر جلسے رکھتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں اور خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ساری انسانیت کے لیے اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس سے زیادہ عظیم اور اس سے زیادہ پرمسرت
और इससे ज्यादा बाबरकत वाकया और कोई नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और हमें इस्लाम की तालीमात का नूर मिला, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका की बरकत हम सबको नसीब हुई। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, और हम अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और एक मुसलमान के लिए यह ऐसी मोहब्बत है कि इस मोहब्बत के सामने माँ बाप और बीवी बच्चों की मोहब्बत भी कोई माने नहीं रखती। हम दुनिया की सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हमारा जो दावा है, क्या सिर्फ हम जबान से ये कहने से कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं तो क्या उस मोहब्बत का हक अदा हो जाएगा, या फिर उस मोहब्बत के कुछ तकाजे हैं या उस मोहब्बत की कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हम सबको अदा करनी है? इस पर हमको गौर करना चाहिए। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी जो मोहब्बत है उसका तकाजा यह है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल भी करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर हम अमल करें। यह पहला तकाजा है। और दूसरा तकाजा यह है कि हम जिस नबी के मानने वाले हैं, हम जिस नबी से मोहब्बत करते हैं, उस नबी को अल्लाह ताला ने सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि नबी हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। तो ये पैगाम हमें तमाम इंसानों तक पहुंचाना भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए दुनिया में नहीं आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने आपको रहमत बनाकर भेजा है। और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया कीजिए, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़कर देखिए कि आपको मालूम होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों पर जो एहसानात किए हैं, वो एहसानात सिर्फ मुसलमानों पर नहीं बल्कि सारे इंसानों के लिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, आपने गुलामों को उनका हक दिलाया, आपने औरतों को उनका मुकाम और मर्तबा अता किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों, बेवाओं और मजबूर और तमाम जरूरतमंद लोगों को अपने एहसानात से रोशनास करवाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एहसानात किए हैं, हम देखते हैं कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत तमाम इंसानों के लिए आम थी, लेकिन लोग आज जानते नहीं हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि वक्फे वक्फे से कुछ लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर लोगों के जहनों के अंदर गलतफहमियां पैदा की गई, लोगों के अंदर गलत तस्वुर पेश किया गया, गलत तस्वीर उनको बताई गई। तो जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो हमारा बुनियादी काम यह है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ लोगों के सामने पेश करें, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारनामों से लोगों को वाकिफ कराएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर ये और ये कारनामे अंजाम दिए थे, इस तरह आपने गुलामों को हक दिलाया था, इस तरह आपने औरतों को ऊंचा मुकाम अता फरमाया, इस तरह आपने यतीमों के साथ मामला किया। इन सारे वाकयात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आज लोगों को बताने की जिम्मेदारी हम मुसलमानों पर आयद होती है। हम मुसलमान अपने अमल के जरिए से, अपने कौल के जरिए से, अपने मामलात के जरिए से, अपने अखलाक और किरदार के जरिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लोगों तक पहुंचाएं। यह वो अहम काम है जो मुझे और आपको करना है। तो अजीज दोस्तों, अभी आपको बताया गया कि इस माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से जमात इस्लामी हिंद जिला करीमनगर ने यह फैसला किया कि क्यों ना इस महीने के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से हजारों लोगों तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मैसेज को, पैगाम को आम किया जाए। चुनाचे हमने यह फैसला किया कि इस रबीउल अव्वल के एक महीने में
हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारुफ को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के पैगाम को लोगों के अंदर आम करेंगे। तो उसके लिए हमने फैसला किया, हमने ये टारगेट लिया कि इस एक महीने के अंदर हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज और मुख्तलिफ सरगर्मियों को अंजाम देंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंट्रोडक्शन को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मैसेज को तकरीबन 1 लाख बरादरान वतन यानी नॉन मुस्लिम तक पहुंचाएंगे और 80,000 मुसलमानों के अंदर, बरादरान मिल्लत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पैगाम को आम करेंगे ताकि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानकर अपनी जिंदगियों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक तब्दीली ला सकें और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसवे के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। तो इसके तहत हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बनाए। पहला प्रोग्राम हमने इसी मुकाम पर जहां आप बैठे हुए हैं, पूरे जिला करीमनगर के उलमा और आइम्मा जो मसाजिद के अंदर खिदमत अंजाम देते हैं, उनका एक इजलास हमने रखा और उनके सामने मुहिम के तारुफ को पेश किया। फिर उसके बाद हमने तकरीबन जो लिटरेचर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुश्तमिल जो मुख्तलिफ किताबें हैं, तारुफी पॉम्फलेट्स हैं, हैंडबिल्स हैं, पोस्टर्स हैं, ये इंग्लिश के अंदर, तेलुगु के अंदर और उर्दू के अंदर हमने तकरीबन 3.5-4 लाख का हमने जो है मटेरियल तैयार किया और हमने ये तय किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पैगाम को हम बरादरान वतन तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। चुनाचे हमने पहले फैसला यह किया कि इस जिला करीमनगर के अंदर जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो कलेक्ट्रेट ऑफिस हो, चाहे वो एमआरओ ऑफिसेस हो, चाहे वो जिला परिषद ऑफिस हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, हम जाकर उनसे मुलाकात करेंगे और उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराएंगे। उसके लिए हमने एक गिफ्ट पैक तैयार किया और उसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारुफ पर मुश्तमिल मुख्तलिफ किताबचे, पॉम्फलेट्स वगैरह हम उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा काम, हम इस पूरे जिले के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने के लिए मुख्तलिफ जो जराए हैं, जैसे आप देखते हैं शहर करीमनगर के जितने अहम मकामात हैं, जितने अहम चौरास्ते हैं, आप आज देखिए वहां पर बड़े बड़े जो कैंटिलीवर्स हैं, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, उस पर हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लगाया है और इससे हजारों लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से वाकिफ होंगे। इसके अलावा इस जिला करीमनगर के अंदर जितने मजहबी ग्रुप्स हैं, जितने मजहबी तंजीमें हैं, हम उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रख रहे हैं। जैसे हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इन तमाम लोगों के मराकिज तक हम पहुंच रहे हैं। अभी सुबह में 11 बजे हमारा गुरुद्वारे के अंदर इसी तरह का एक प्रोग्राम था, वहां पर हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पेश किया। अभी चर्च के अंदर हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है और शाम में सत्य बाबा साई टेम्पल के अंदर भी इंशाअल्लाह वहां पर सीरत का हम प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके अलावा जितने तमाम तबकात पाए जाते हैं, जैसे एससीस हैं, एसटीस हैं, बीसीस हैं, इन तमाम लोगों के संगमों के लोगों से हमने मुलाकातें की और उनसे वक्त लिया और उन तमाम लोगों तक इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पैगाम को और तारुफ को पहुंचाया जाएगा। इस तरह ये तमाम एक्टिविटीज इस मुहिम के अंदर, इस कैंपेन के अंदर चलाई जा रही हैं ताकि बड़े पैमाने पर हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से लोगों को आगाह किया जाए। और इस मुहिम का जो आखिरी प्रोग्राम है वो 3 बड़े प्रोग्राम्स हैं जिसकी इत्तला हम आपको देना चाहते हैं। आपको खत्म करता हूं कि इस कैंपेन के जो इख्तितामी प्रोग्राम्स हैं वो 3 हैं। पहला प्रोग्राम ये कि 19, 20 और 21 तारीख को सर्कस ग्राउंड पर एक इस्लामिक एक्सपो हो रहा है, एक एग्जीबिशन रखा जा रहा है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मुख्तलिफ मॉडल्स के जरिए से, 3D मॉडल्स के जरिए से वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के अहम वाकयात को बताया जाएगा। तो वो 19, 20, 21 3 दिन जो है एक्सपो रहेगा जिसके अंदर मर्द और खवातीन, स्टूडेंट सब शिरकत कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम में 9 बजे तक इंशाल्लाह वो 3 दिन हमारा इस्लामिक एक्सपो होगा सर्कस ग्राउंड के अंदर। आप खुद भी उसको विजिट करें और तमाम लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर विजिट करवाने की कोशिश करें। दूसरा प्रोग्राम 19 तारीख बरोज़े जुमा उसी सर्कस ग्राउंड पर इंशाल्लाह एक ऑल इंडिया नातिया मुशायरे का भी इनेकाद हमने किया है जिसके अंदर हिंदुस्तान भर से मुख्तलिफ जो मशहूर नात के शोरा हैं इंशाल्लाह वो तशरीफ ला रहे हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद और दीगर मकामात से। तो वो ऑल इंडिया मुशायरे में भी आप हजरात जरूर शिरकत करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शरीक करवाने की कोशिश करें। और आखिरी जो प्रोग्राम होगा इस कैंपेन का, जो एंडिंग प्रोग्राम है, वो है सीरत कॉन्फ्रेंस। इंशाल्लाह वो 21 तारीख को इतवार के दिन 7 बजे शुरू होगी
वो भी सर्कस ग्राउंड पर इंशाल्लाह। उसके अंदर हमारे जमात इस्लामी हिंद के जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं इंजीनियर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब, वो और जमात के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अजहरुद्दीन साहब भी उसके अंदर शरीक होंगे। तो मैं आप तमाम से ख्वाहिश करता हूं कि उस नातिया मुशायरे में, एक्सपो में और सीरत कॉन्फ्रेंस में आप तमाम हजरात जरूर शरीक रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके अंदर शरीक करवाने की कोशिश करें। हमारा इरादा है कि तकरीबन 6-7 हजार अफराद उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जमा हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात अपने लेवल पर इसके लिए कोशिश करेंगे और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अफराद को शरीक करवाने के लिए भी आप लोग कोशिश करें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत का तकाजा भी है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार होकर उसके लिए जो भी काम किए जाते हैं उसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात इस जानिब तवज्जो देंगे और इन प्रोग्रामों को कामयाब बनाएंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। जज़ाकल्लाह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।